हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट स्टैंडर्ड, that is essay 320. It deals with audit materiality, and once again I am telling you this series is going for both IPCCians and finalists. So don't worry guys, stay tuned. So let's start with our first question. Question number 1. Concept of materiality. कंसेप्ट ऑफ मटीरियलिटी। तो देखते हैं गाइस। मटीरियलिटी इज अ सब्जेक्ट। मटीरियलिटी इज अ सब्जेक्ट ऑफ professional judgment and discussion presented in financial statements. Materiality is a subject of professional judgment and discussions presented in गाइस इसको हम FRF लिखते हैं। Discussions presented in FRF, Financial Reporting Framework, which provides a reference to auditor in determining materiality. If FRF doesn't indicate any discussions on materiality, then first point, then materiality means misstatements including omissions which may affect the decision, which may influence the economic decision of the users. ठीक है guys. Now moving on to second point, it determine in the light of surrounding circumstances. Now the third point is it also depends upon the common financial information need of the users. तो गाइस हमने पर्टिकुलर फर्स्ट क्वेश्चन में मटीरियलिटी का मतलब समझा वो क्या होता है। अभी हम एक बार राइटअप के ऊपर ध्यान देंगे, उसके बाद एक बार इसको डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। सो नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज परफॉर्मेंस
मटीरियलिटी, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी में देखते हैं गाइस, परफॉर्मेंस materiality is an amount set by auditor at less than the materiality level to reduce to an appropriate sorry guys, to an appropriate low level, the possibility of aggregate of uncorrected misstatements exceeding the materiality level. अभी बिल्कुल भी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, डोंट वरी, समझेंगे डिटेल में इसको भी. Now the third question we are going to cover is revision of materiality. Question number 3, revision of materiality. If any information comes to the knowledge of if any information comes to the knowledge of auditor which causes auditor to determine a different level of materiality, auditor shall revise the materiality for the financial statement as whole, and if required for particular class of transaction, account balance or disclosure. If the auditor concludes that a lower materiality materiality is required as compared to the materiality determined
initially consider whether it have any effect on nature, timing and extent of further audit procedures, and to determine whether revision of परफॉर्मेंस मटेरियलिटी रिक्वायर्ड। ये स्टैंडर्ड काफ़ी टेक्निकल स्टैंडर्ड है, अभी आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होगा, बिल्कुल भी 1% भी समझ नहीं आ रहा होगा। डोंट वरी गाइस, ट्रस्ट मी, आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग, सो स्टे ट्यून गाइस। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, यूज ऑफ बेंचमार्क। A percentage is often applied to a chosen benchmark which is a first step to determine materiality for the financial statement as whole. Following considerations required. Number 1, the elements of financial statement. Second point is items on which attention of the users of financial statement tend to be focused. Third point is nature of industry, economic environment in which entity operates. Now the next point is the entities ownership structure and the way it is financed. Next point is volatility of the benchmark. So इसी के साथ हमने ये वाला क्वेश्चन भी ख़त्म करा। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पर्टिकुलर स्टैंडर्ड। हर स्टैंडर्ड में हमने देखा है कि ऑडिटर की ड्यूटी क्या है, तो इसमें भी देखते हैं गाइस। ऑडिटर्स ड्यूटी, establishing overall
audit strategy the auditor to establish overall audit strategy the auditor shall determine materiality for the financial statement as whole. The materiality for the specific items or transactions the materiality for the specific items or transactions for which lower amount of materiality लोअर लेवल कर देते हैं गाइस इसको लोअर लेवल ऑफ मटेरियलिटी रिक्वायर्ड देन द नेक्स्ट पॉइंट इज डिटरमाइन द परफॉर्मेंस मटेरियलिटी फॉर द पर्पस ऑफ assessing the risk of material misstatement and determining nature, timing and extent of audit procedures. तो गाइस इसी के साथ हमने अपना स्टैंडर्ड ख़त्म करा. सो इट्स अ वेरी टेक्निकल स्टैंडर्ड. सो लेट्स अंडरस्टैंड. गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मटेरियलिटी का मतलब है गाइस मटेरियलिटी इन्वॉल्व सब्जेक्टिविटी. सो व्हाट डू यू मीन बाय सब्जेक्टिविटी गाइस? सब्जेक्टिविटी इज़ हर बंदे का अपना एक नज़रिया है इसको देखने का. गाइस हर जगह आप किसी भी फर्म में चले जाइए, किसी भी अगर आप फर्म में ऑडिट करना स्टार्ट करते हैं तो हमेशा वहाँ पर ना जैसे मान लीजिए मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ बिल्कुल. Suppose we are going to do a audit of a particular company and we start scrutinizing the expenses and incomes here. So while scrutinizing expenses, first of all we have to select the accounts, the particular accounts which we have to verify. Then in that particular account, guys मैं आपको पूरा लिख कर बताता हूँ. Step 1 is to determine which accounts we are going to verify. फिर उसके बाद बात आती है in that particular account what major expenses which we have to check with their corresponding JVs. गाइस होता क्या है, मैं ऑडिट करने गया किसी कंपनी में. मैंने वहाँ पे डिसाइड किया कि मैं मान लीजिए कोई भी एक्सपेंस ले लीजिए आप, लेट्स से रिटेनरशिप फीस मैं चेक करूँगा. ठीक है, मैं उसके लेजर में गया. पर्टिकुलरली बड़ी कंपनियों में सैप होता है और छोटी कंपनियों में मीडियोकर कंपनियों में टैली होता है. तो सैप या टैली मेरे पास है. मैं उनमें से रिटेनरशिप फीस का लेजर निकलवाऊँगा या फिर मैं सिस्टम में उसको एक्सपोर्ट कर लूँगा. एक्सपोर्ट करके गाइस उसके बाद जो क्वेश्चन मेरा अराइज़ होगा, उसके बाद यहाँ पर मेरा क्वेश्चन अराइज़ होगा कि कितने लेवल पर मेरे को चेकिंग करनी है इस पर्टिकुलर लेजर में, क्योंकि इस लेजर में पूरे साल की 1000 ट्रांजैक्शंस हैं.
बड़ी कंपनियों में ऐसा ही होता है। सो हेयर वी वांट टू डिटरमाइन मटीरियलिटी। तो यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ती है मटीरियलिटी की। मैंने कोशिश करी आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देकर इसको पूरा समझाऊं, तो होप आपको समझ आया होगा कि कब ज़रूरत पड़ती है मटीरियलिटी की। अब मैं देखूंगा कि जो मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूज़र्स हैं वो उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, उनका जो फोकस रहना चाहिए वो किस पे रहना चाहिए। अगर मेरे को लगता है कि इतनी बड़ी कंपनी है यार, उसकी इतनी बड़ी 200 करोड़ की तो उसकी नेटवर्थ है, उसकी बैलेंस शीट इतनी बड़ी है, तो 2 लाख की अगर कुछ गड़बड़ी है तो वो इमैटीरियल हो जाएगी, वो इमैटीरियल हो जाएगी। अगर वही 2 लाख की मटेरियल 2 लाख का गड़बड़ी किसी छोटी कंपनी में अगर हम उसको चेकिंग करते हुए हमें मिलती है तो इट्स अ वेरी ह्यूज अमाउंट गाइस, इट्स अ वेरी ह्यूज अमाउंट। It becomes materiality there in a small company, but in large companies, listed companies, amount of 2 lakh rupees is nothing, like nothing guys, nothing। वो तो इग्नोर करते हैं इसको, वो अपनी पॉलिसी में भी लिख देते हैं कि हम जो है हमने पॉलिसी बनाई है कि 2 लाख रुपए तक की अगर कोई भी कुछ मिस स्टेटमेंट या कुछ भी होती है तो इट डजेंट अफेक्ट अवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्योंकि गाइस उनकी हज़ारों करोड़ों की उनकी बैलेंस शीट्स होती हैं, उनकी नेटवर्थ होती हैं, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर हमने समझा मटीरियलिटी का मतलब। तो फर्स्ट पॉइंट गाइस आईपीसीसी वाले स्टूडेंट्स इसको छोड़ सकते हैं, बट फाइनल वाले स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये बोलता है कि मटीरियलिटी सबसे पहले तो मैनेजमेंट अपनी एफआरएफ में लिख देती है कि हम इतनी बड़ी कंपनी है, हम 2 लाख रुपए तक की 2 लाख रुपए तक की गड़बड़ी को स्टेटमेंट नहीं मानते, हम नहीं मानते, हम बड़े कंपनी हैं हम, ठीक है गाइस। तो ये इस लाइन में लिखा है। फिर उसके बाद लिखा है कि अगर छोटी कंपनी है, छोटी कंपनी में ये सब नहीं लिखा हुआ, ये पूरा झंझट नहीं, ये नहीं है, तो कैसे हम अपनी मटीरियलिटी डिज़ाइन उसको करेंगे। तो वही पॉइंट्स हम इसमें लगाएंगे कि फाइनेंशियल जो यूज़र्स हैं उनकी क्या नीड है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। फिर हमने सेकंड पॉइंट देखा, व्हाट डू यू मीन बाय परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। गाइस एक होती है मटीरियलिटी, एक होती है परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। लेट सपोज दिस इज आवर मटीरियलिटी एंड दिस इज आवर परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। सपोज 2 लाख रुपए हमारा मटीरियलिटी लेवल है कि अगर 2 लाख रुपए मतलब तक की अगर कोई ट्रांजैक्शन होती है तो उसको हम इग्नोर करेंगे, बट जो परफॉर्मेंस मटीरियलिटी लेवल होता है वो उससे कम होता है, उससे कम होता है। परफॉर्मेंस मटीरियलिटी लेवल से कम होता है। नाउ द क्वेश्चन अराइज, व्हाई देयर इज़ अ नीड फॉर परफॉर्मेंस मटीरियलिटी? बिकॉज auditor is ensuring himself that the aggregate of the uncorrected and undetected misstatements in any case should not be go beyond the materiality level, should not be go beyond the materiality level। So guys hope आपको समझ आया होगा कि वो नहीं चाहता कि 2 लाख के ऊपर कोई मिस स्टेटमेंट जाए, तो वो यहीं पर उसको रोकना चाहता है, उसको। तो ये परफॉर्मेंस मटीरियलिटी में बोलते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि रिवीजन ऑफ मटीरियलिटी की ज़रूरत क्या पड़ती है, हमें क्यों करते हैं रिवीजन ऑफ मटीरियलिटी। अगेन दिस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर आईपीसीसी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है ये। दिस पॉइंट इज़ ऑल्सो नॉट इम्पोर्टेंट फॉर आईपीसीसी स्टूडेंट्स। आईपीसीसी स्टूडेंट्स के लिए ऐसे यहीं पर ख़त्म हो गया है। मटीरियलिटी की डेफिनेशन लर्न कर लीजिए, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी की लर्न कर लीजिए, हो गया आपका ऐसे 320। नाउ फाइनल स्टूडेंट्स वाले बहुत ध्यान से देखेंगे, क्योंकि अगर क्वेश्चन आएगा तो हमारा इन्हीं 2-3 क्वेश्चन में से आएगा, आगे वाले क्वेश्चंस आईपीसीसी के लिए छोड़ दिए जाएंगे। सो ध्यान दीजिएगा गाइस। रिवीजन ऑफ मटीरियलिटी में वो बात करता है कि अगर ऑडिटर को कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है जिससे उसकी मटीरियलिटी लेवल चेंज होता है, तो ही हैज़ टू रिवाइज हिज मटीरियलिटी लेवल, and while revising his materiality level he has to consider the consequent effects on the
जो अपने वो कॉन्जिक्यूटिव इफेक्ट्स देखेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल किस पे देखेगा कि नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट, जो मैंने डिसाइड किया था कि मैं इतने टाइम पे प्रोसीजर करूँगा, इतना क्वांटिटी में करूँगा, वो सब अब एडिक्वेट रह गया है या नहीं रह गया। पहली चीज़ वो ये देखेगा। दूसरी चीज़ वो देखेगा कि अगर मटीरियलिटी लेवल ही मेरे को गलत लग रहा है तो परफॉर्मेंस मटीरियलिटी भी क्या मेरे को रिवाइज करने की ज़रूरत है, बिकॉज वी हैव सीन इन अवर अर्लियर एग्जाम्पल बोथ परफॉर्मेंस मटीरियलिटी एंड मटीरियलिटी आर इंटरलिंक्ड टू ईच अदर. If materiality level is 2 lakh, then the performance materiality level should be less than the materiality level. So I hope you understand, guys. So the last question is use of benchmark. Guys, इसमें benchmark, ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन तो मैंने ऐसे ही बनाया है, बट इसमें एग्जैक्टली वो पूछता है कि प्रोसेस क्या है मटीरियलिटी को डिज़ाइन करने का। तो डिज़ाइन करने का यही प्रोसेस है कि हम एक बेंचमार्क डिसाइड करते हैं. आई होप यू ऑल गाइज अवेयर अबाउट द बेंचमार्क. बेंचमार्क इज़ ए स्टैंडर्ड. तो हम एक स्टैंडर्ड बनाते हैं और उस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को हर अपने, जैसे मैं रिटेनरशिप अकाउंट चेक कर रहा था तो मैंने जो मटीरियलिटी लेवल डिसाइड किया, लेट सपोज 20% मैंने डिसाइड किया, तो मैं 20% से अबव जितने भी जो अमाउंट होगा उसको मैं चेक करूँगा और 20% से नीचे वाले अकाउंट्स को मैं इग्नोर कर दूँगा. फिर वो बोलता है कि ये सब करने के लिए हमें ये चीज़ें सारी देखनी पड़ती हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कौन कौन